Hi guys, this is Piyush from Trade with PS. So guys, like good morning to all of you. Like it's 10:38 a.m. in the morning, and I was just doing the analysis. So I thought I should share it with you so that you have ample time to go through all the levels and you can decide yourself that what market can do. So guys, you already know about my channel, and you can find the Telegram channel link in the description, and where I post the analysis like what market can do now or what market can do from this level or that level. So like major where major resistance is building up or where major support is now building up. So those things I already provide in the index, and I also tell you about the stocks which I am trading on that particular day. So today I won't be able to share the stocks. Yeah, maybe one or two stocks I will share with you guys. And I have not done analysis on the stocks as of now. I have only gone through like one or two stocks which I'll trade tomorrow. So now let's start with the Nifty. So now Nifty, let me just show you 1 day chart. So this is index, right? So I just planted a channel, like before I planted a channel, and I told that there will be a major correction once market break down this 18,200 level, and we saw a fall till 17,600, and post that, if it is now, if you see this particular channel also, which was holding the Nifty every time, now we have closing below that channel as well. Now if you see, the major support is coming around 17,200. so in this level, or you can say 17,000, yeah, 17,200 is the area from where you can see a bounce back, but if it is gone, then 17,000 is the last level. Now how we can trade tomorrow? Then now if we are seeing this, if market is able to hold itself above this channel, like it not, and it give closing above, then we can see its upside in Nifty till 18,300 if it is able to sustain itself within this. Now how to trade tomorrow? Let's see. So we can see this channel. You can also plant this channel. It will help you to know your levels for the positional trades, and the major resistance which will come is 18,000. So now market gave closing here. Now it is 671. Market gone till 17,708, but closing below that particular level. So it is going to face a resistance here, right? So my point is, like, if market goes above 17,800, this is the level where you should buy, okay, in Nifty index. And if it is faces resistance here, then you should sell, or you can buy a PE position here, and your first target should be this channel. And once market crosses this channel, then your first target should be 17,600. so it's nothing but a 200 fall point, okay, 200 points for you. And below 17,600 you can see 550, 500. 17,500 is going to act as a major support for tomorrow, and from here only you will see a bounce back till this level. Again, market is going to form a range. That is my guess for this like Diwali Muhurt, right? So market will decide like which side it is going to give a breakout. If it is downside, then you know the ultimate level 17,200 and 17,000, not more than that. Market is going to hold itself. Now if it is going up, I mean, if we gave a closing above 17,800, I should talk in Hindi also, because कुछ मेरे viewers हैं जो हिंदी में भी हैं, and I have people from South, so I actually mix those things. So hope you guys excuse me for that. I am just going to mix Hindi as well. So above 17,800 अगर मार्केट अपने आप को होल्ड करना शुरू कर देता है, then you can see a level of 17,880. क्यों? क्योंकि यहीं पर एक स्विंग है, राइट? तो ऑलवेज बुक योर ट्रेड अराउंड वन स्विंग. इफ यू आर बाइंग 2 लॉट्स 3 लॉट्स, तो आप 1 या 2 लॉट को यहाँ पे निकाल दें, कीप बुक योर पार्शियल प्रॉफिट. देन 17,950 एंड 18,000 इज द लेवल जहाँ तक मार्केट को हम मंडे को एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बट 17,800 से मार्केट के वापस आने के ज़्यादा चांसेस है. 17,800 के ऊपर नज़र बना के रखिए. अगर आपको इसी चैनल के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है, देन यू कैन सेल. अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाके 17,800 के पास अगर रेजिस्टेंस बनाता है, देन यू कैन बाय अ पीए. क्योंकि बायर्स कभी भी या सेलर्स कभी भी एक छोटे लेवल के नीचे नहीं सेल करना चाहते. दे ऑलवेज वांट कि एक हम ऊपर लेके जाके फिर मार्केट को सेल करें, सो दैट दे कैन
ऑल्सो ट्रैप सम बायर्स जो यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम देखेंगे बट दे विल नॉट बुक देयर प्रॉफिट फॉर बिकॉज ऑफ ग्रीड। तो वहाँ से वो वापस से मार्केट को नीचे लेके आते हैं और बायर्स को एंड पुट बायर्स को एंड उसको ट्रैप करके रख देते हैं। मार्केट का अभी जो सिनेरियो लग रहा है कि मार्केट यहाँ से विद इन दिस रेंज market can hold itself before giving a breakout either side, and if this time market crosses this 18,300 level जो कि इस चैनल का अपसाइड है, then 18,600 will be your first target and post that 19,000 level on the upside and plus 25,000 because मार्केट के अंदर ऑलरेडी 1,000 पॉइंट का करेक्शन आ गया है, 600 उसने ऑलरेडी अचीव कर लिया है, 400 पॉइंट्स का और एक फॉल बाकी है। I'll say 600 points, more 600 points, not more than that। मार्केट का करेक्शन यहीं तक है, इसके नीचे कुछ नहीं करेक्शन है। दिस इज ऑल प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ पे अभी अगर आप जाके चेक करेंगे FII DI एक्टिविटी, देन FII इज सेलिंग एंड DI इज बाइंग। नाउ अभी उल्टा क्या होगा, DI विल सेल एंड FII विल बाई वंस मार्केट एक अपने पर्टिकुलर करेक्शन पॉइंट पे पहुंच जाएगा। एंड FII डोंट थिंक दैट इंडियन मार्केट्स आर टू volatile or too weak to not to invest, they are just booking their profit, so don't compromise on your positions। Now if I talk about bank nifty की हमने देखा एक दिन फॉल आया, दूसरे दिन फॉल आया, तीसरे दिन फॉल आया, दिस इज इंडेक्स, इट इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू, राइट। तो सब हर दिन सेलर्स ही पैसा नहीं बनाते, कभी कभी बायर्स भी पैसा बनाते हैं, तो इट इज ऑलवेज 70-30%, तो 30% चांसेस आपके लिए भी हैं। नाउ लेट्स सी मार्केट क्या कर सकता है। हमने देखा कि 18,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। मार्केट 38,500 गया, उसके बाद वापस से एक बाउंस बैक करके उसने 39,115 के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है। अब अगर हम उसको डेली चार्ट के ऊपर देखें तो मार्केट ने जो करेक्शन दिया था, मार्केट ने एक ये डब्ल्यू पैटर्न बना के एक ब्रेकआउट दिया था, राइट, और यहाँ से 14,000 और 42,000 अराउंड मार्केट किया था, 41,850, दिस इज द हाई ऑफ 41,829 या 41,850 एंड मार्केट उसको सस्टेन नहीं कर पाया। देन मार्केट के अंदर एक फॉल आया, और कहां तक फॉल आया अगर आप इसको चेक करेंगे तो वो डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट तक, राइट। मार्केट ने अपने आप को डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट तक ऑलरेडी टेस्ट मार दिया है। अब अगर मार्केट इसके नीचे अपने आप को किसी भी दिन क्लोजिंग देता है, राइट, इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो आप डब्ल्यू पैटर्न का स्टार्टिंग पोजीशन को पकड़ लीजिए, वो आपका करेक्शन पॉइंट होगा। दिस लेवल 37,500 और this level 37,250 on positional basis if it gives closing below this, okay। वैसे भी 38,000 is going to act as a small like very strong support for the bank nifty, तो इसको ध्यान में रखिएगा। now अब हम देख लेते हैं मार्केट कल कैसे मोमेंटम कर सकता है। अगर हम देखें मार्केट ने अपने आप को अराउंड क्लोज किया था 270 बट क्लोजिंग है 115 की, तो मार्केट अगर अपने आप को 400 के ऊपर सस्टेन करता है देन 550 एंड 550 ब्रेक होता है तो 39,800 शुड बी योर अल्टीमेट टारगेट एंड अबव दैट 40,000 मार्केट विल ट्राई टू कि इन सेलर्स को इस स्विंग के पास से निकाला जाए। तो ये मार्केट इस लेवल तक भी अपने आप को टेस्ट कर सकता है 40,080। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देता है देन वापस से मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है। बट अगर मार्केट 39,400 और 39,550 इसके अराउंड आपको रेजिस्टेंस फेस करता दिखता है तो आप इसको सेल करेंगे। आपका फर्स्ट टारगेट 39,200 और उसके बाद 38,950 एंड 37,870 और 770 इसके आसपास आपका एक टारगेट होना चाहिए इन बैंक निफ्टी। अगर अभी हम बात करें एक्सिस बैंक की, तो आई टोल्ड यू दैट मैं आपको एक स्टॉक प्रोवाइड करूंगा। तो एक्चुअली 765 के ऊपर जब तक एक्सिस बैंक नहीं जाता, डोंट गो फॉर लॉन्ग। अगर मार्केट यहीं से आपको दिखता है तो 765 के पास आप एक पोजीशन अपनी बुक कर सकते हैं। अबव 765 इट एबल टू होल्ड देन 800 इज द लेवल जहां तक आप एक, मैं मंडे के दिन एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहा हूं इन एक्सिस बैंक टिल 765। इफ इट ओपन्स फ्लैट आई विल गो फॉर अ बाइंग इन एक्सिस बैंक। अगर मैं M&M की बात करूं तो M&M अपने आप कल उसने अपने आप को गैप डाउन ओपन किया और उसने एक अच्छी क्लोजिंग करी है। अगर कल वापस से M&M 890 के लेवल्स को अचीव करता है और उसके ऊपर होल्ड करता है तो 898 एंड 906 हमारे टारगेट होंगे। बिलो दिस मार्केट ऑलरेडी एक
चैनल के अंदर चल रहा है। अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे देखें, और लेट मी जस्ट चेंज इट टू 15 मिनट्स, लेट्स सी व्हाट वी आर सेइंग। देखिए मार्केट एक यहीं पे अपने आप को होल्ड कर रहा है एंड ट्रेड दिस ब्लू लाइन एज द सपोर्ट। मार्केट वहीं पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। कल अगर इस चैनल का ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा मोमेंटम हम कैच कर सकते हैं टिल 898 और 900 लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो 860 आपका एक अल्टीमेट टारगेट होगा फॉर द लॉन्ग टर्म। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुमारो एंड आई विल सी यू गाइज with new analysis tomorrow. Thank you guys and have a great weekend. Now it's already over and happy trading. Thank you. And if you like the analysis, then do hit like and subscribe to the channel, and also share it with your friends and families, because that's the support which you can provide. Let's grow together. Thank you.